Hello children. Hello children. Welcome to my class. Correct physics. And here we are with physics subject. The topic is motion of class 9th or grade 9th. Let us discuss about the topic motion. So before discussing this motion, I feel like to tell you what do you mean by the rest body. What is the meaning of rest body? What is the meaning of rest body? Rest. The body is rest. Okay. Suppose if I keep the chalk, then will you say the rest body or motion body? The rest body or it is motion body? Okay, some are saying rest, some are saying motion. Both are correct. The way I asked, it is improper. I could have asked you, what is the position of the body with respect to you? And what is the position of the body with respect to moon? Then answer will be different. So here you are using a reference point. Means you are using the reference point by using the term with respect to. With respect to whom? With respect to you. The chalk is rest. With respect to the moon, the chalk is moving. How? This place, earth is moving. This place is moving. Along with this place, the chalk also moving. So, the way of question must be on the base on the reference point. तो reference point लेना जरूरी है. Observe कहाँ है? With respect to which observer? Observer on the earth. This object also here, earth. So with respect to you, who is sitting on the earth, it is rest. But if you go to the moon, with respect to you, who is sitting in the moon, it will be the motion. Okay. So what is the definition of the motion? The definition of motion is definition of rest, when an object does not change the position with respect to surrounding with passage of time. Okay. So समय के साथ साथ समय बीतते जा रहा है. Suppose the time t is equal to 0. Time t is equal to 0, and after time 5 seconds, you saw that the chalk is not changing the position with respect to the surrounding. You are the observer. You have taken a reference point. आपको एक reference point लेना है. तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. अगर ऑब्जेक्ट डजंट चेंज द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग with passage of time is called, student, your rest body. अब देखो स्टूडेंट, what is the definition of motion body? Just I have erased. मैं खाली काट दिया, यहाँ से मिटा दिया, dozen मिटा दिया, तो ये क्या हो गया? मोशन बॉडी का डेफिनेशन बन गया. मोशन बॉडी का डेफिनेशन बन गया. तो क्या हुआ? When an object changes the position with respect to surrounding with passage of time is called your motion body. अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये यहाँ पर था कुछ देर के बाद अभी यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर था कुछ देर के बाद ये यहाँ पर आ गया. बट समय शून्य में, समय t इज इक्वल टू 0 में यहाँ पर था, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया स्टूडेंट? ये यहाँ पर आ गया. तो हम क्या बोलेंगे? ये मोशन बॉडी है. ओके. आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट, प्लीज यूज द पेन एंड पेपर while watching this video. So student, we'll discuss right now what is distance and displacement. Distance क्या होता है? Displacement क्या होता है? Okay. Total distance travel by a body in a indefinite direction. Total distance. मान लीजिए स्टूडेंट, ये मेरा एक तो रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल कितना यूनिट का? फर्स्ट 2 यूनिट, सेकंड 3 यूनिट का ब्रेड्थ में, 3 यूनिट का उसका लेंथ है, और लेंथ में कितना उसका मेजरमेंट है? 4 यूनिट. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट. ओके. नाउ चलो देखते हैं, है ना? हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक बॉडी को रखेंगे ए में और उसको भेजेंगे बी तक. बॉडी ए में था और बी तक चले गया, तो आपको पूछा जाएगा
डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है ना, टोटल पाथ ए से बी तक गया तो कितना पाथ कवर किया। तो पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू, यू कैन राइट डी फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे ना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। लेकिन जब ए से बी जा रहा है इनडेफिनाइट डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है भाई, ना जा रहा था और इस मोड में क्या किया, वो अपना ना रास्ता चेंज कर लिया, मोड़ लिया, रास्ता मोड़ लिया, इस रास्ता में ये मोड़ लिया। तो डेफिनेशन डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बना, डायरेक्शन को क्या हुआ, कोई मतलब नहीं बना। तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बट इन ए इनडेफिनाइट डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, एकदम शॉर्टकट का, एकदम पूरा आसान तरीका वो पकड़ेगा। द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना तब आसान लगेगा व्हेन द कांसेप्ट इज रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ। अगर आप डे टू डे लाइफ के साथ में कांसेप्ट जुड़ जाए तो फिजिक्स बहुत ही आसान लगता है। देखो ये क्या हुआ, ए से उसको बी जाना है, ए से क्या करेगा, बी जाना है, तो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ सीधा चले जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ए से बी चले जाना डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं उसको भेजना है कि यहाँ पर ये जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ जाएगा, तो टोटल पाथ जा रहा है, अपना रास्ता में जा रहा है, ठीक है। तो वो होगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, निकला यहां से पहुंच गया बी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आओ देखो यहां पर इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, जब जा रहा था वो अपना डायरेक्शन के साथ एकदम वो पर्टिकुलर था, है ना, एकदम नियम को मान के चल रहा था कि मैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। निकला ए में, पहुंच गया बी में, और क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। क्या उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हाँ उसी को बोलते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कितना का, ये मान लीजिए तो उसका पी है, तो पी बताऊंगा हर जगह में ऐसा पी नहीं ले सकते, हम थीटा लेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। थीटा के हिसाब से पी बनता है स्टूडेंट, थीटा के हिसाब से बी बनता है। वो हम लोग पहले जैसे लेवल बढ़ते जाएगा हमको पता हो जाएगा, है ना, कैसे थीटा के हिसाब से हमको पी लेना है, कैसे थीटा के हिसाब से हमको बी लेना है। तो स्टूडेंट देखो अभी क्या होगा, ये क्या, इसका पी है, तो पी का मेजरमेंट कितना है, तो 3 यूनिट का है। अब बी का मेजरमेंट कितना है, तो ये 4 यूनिट का है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये पी बन गया, यहां से यहाँ पी बन गया, और यहां से ये बी बन गया। तो फिर अब ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो पी कितना है, पी 3 है, तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 बन जाएगा। सो 9 प्लस 16 is equal to 25 अंडर रूट एंड अंडर रूट ऑफ द 25 is equal to 5 सेंटीमीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना आया, 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बेसिक चीज पढ़ते हैं स्टूडेंट कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। ये क्या होगा ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपने क्यों बोला कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं स्टूडेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका मैग्नीट्यूड रहता है। कहने का मतलब ये है ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटी, उसका कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं बोल पाओगे कि कोई पर्टिकुलर उसका वैल्यू नहीं है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका वैल्यू रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्शन रह सकता ना रह सकता है। जैसे कि आपने डिस्टेंस देख रहे थे, तो डिस्टेंस में क्या हुआ, ए से गया एक सर्टेन डिस्टेंस तक, उसके बाद क्या हो गया, उसका डायरेक्शन मोड़ दिया। तो डायरेक्शन का रहना है कोई मतलब नहीं है क्योंकि चेंज कर दे रहा है।
तो चेंज करना मतलब कोई मतलब नहीं होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस में क्या हो गया, डिस्टेंस में हो गया उसका मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर था लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि उसका डायरेक्शन वो मोड़ दिया था, है ना। एक बार ही मोड़े और बार बार मोड़े, एक बराबर होता है कि उसे चेंज कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ना रहना बराबर हो गया। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड रहता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बार बार समझा रहा हूं, एग्जांपल तुम्हारा डिस्टेंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज पर्टिकुलर, वो अपना नियम मानता है, मैं निकलूंगा तो सीधा निकलूंगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। वो निकला ए पॉइंट से पहुंच गया बी पॉइंट में, है ना, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड था। तो जब जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उसको कोई वैल्यू को बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी रह जाता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरा बात क्या होगा, देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसका जो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, मीटर बन जाएगा, और सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो जो जितना बड़ा बड़ा चीज को हम लोग ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं, जितना छोटा यूनिट जनरल लाइफ में है ना, और छोटा यूनिट को क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में यूज करेंगे। और इसका भी हो जाएगा, एसआई सिस्टम में क्या होगा स्टूडेंट, एसआई सिस्टम में क्या होगा मीटर, और सीजीएस सिस्टम में बन जाएगा उसका बन जाएगा सेंटीमीटर। लास्ट टॉपिक देखो, लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी जीरो हो सकता है, जीरो पॉजिटिव हो सकता है, अगर पॉजिटिव है जीरो है ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।